Yeah. So about bug bounty hunting, we know about there are a lot of things that we can have in bug bounty hunting. There are a lot of vulnerabilities. बहुत सारी vulnerabilities हो सकती हैं और अलग अलग vulnerabilities अलग अलग टाइप से काम करती है, राइट. yesterday we saw taxonomy. So taxonomy मैं फिर से दिखा देता हूँ. तो bugcrowd की एक taxonomy है and this particular bugcrowd taxonomy से हमें क्या पता लगता है कि किस तरीके से हमारे पास vulnerabilities को हम रेट करते हैं and do we rate it let's say P1 और P2 P3 P4 बेसिकली कौन सी प्रायोरिटी में उस वल्नरेबिलिटी को रेट करेंगे. सो P1s आर एक्चुअली फुल ऑफ इंजेक्शंस एंड अल्टीमेटली इफ़ यू सी ऑन टू द OWASP top 10, right. OWASP top 10 is also one of the list created by OWASP people and इन्होंने top 10 create कर रखे हैं for web-based vulnerabilities, API-based vulnerabilities and all other vulnerabilities. And ultimately OWASP के अंदर अगर आप आते हो तो you would be actually able to see the 2017 version and 2021 version. 2024-25 is coming up, so we would be having newer versions in 2024 or 2025 as हर 3-4-5 साल के अंदर technology is changing, so we actually have to focus on डिफरेंट पार्ट्स ऑफ सिक्योरिटी आफ्टर एवरी 3-4 years. एंड यही चीज़ आगे भी चल करके मेंटेन करती है हमारे सर्टिफिकेशंस को. ऑल द सर्टिफिकेशंस ऑफ साइबर सिक्योरिटी हैज़ टू बी रिन्यूड आफ्टर एवरी 2-3 years. यू हैव टू पे द अमाउंट अगेन एंड यू हैव टू गिव द एग्ज़ाम अगेन. जैसे CH का भी मैं अगर एग्जाम्पल ले लूँ तो हर 3 साल में आपको एक एग्ज़ाम देना पड़ता है, राइट. सो दैट टू लेट द community and let the job seek the interviewer and all these companies know that you are actually into the a modern part of cyber security now. ठीक है. तो अभी अगर आप देखो तो इंजेक्शंस वर एक्चुअली द फर्स्ट प्रायोरिटी और A01 के अंदर ही आता है. सो अल्टीमेटली A01 इंजेक्शंस जब यहाँ पे थे तो इनको 2017 से 2021 में 3 स्टेप्स नीचे हैं, 2 स्टेप्स नीचे A03 बना दिया गया. सो ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल ऊपर आ गया. अगेन ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल कहाँ से ऊपर आया, यू कैन एक्चुअली सी इट केम फ्रॉम डायरेक्टली 5th पोजीशन टू 1st पोजीशन. सो अल्टीमेटली ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल आज की डेट में और भी बहुत ज़्यादा है एंड दिस ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल इसके बारे में मैं जितनी बात करूँ उतनी कम है, राइट. बिकॉज दिस इज़ अल्टीमेटली वन ऑफ द थिंग दैट कैन नॉट बी डायरेक्टली जज्ड एंड दैट इज अल्टीमेटली अ काइंड ऑफ वल्नरेबिलिटी जो आपको हर जगह मिलेगी. आई गेस दिस वल्नरेबिलिटी ऑल्सो लाइज इन लिंक्डइन एज yesterday night when I was into some work, when I was doing, my phone was there sitting on my bed idle. Ultimately जब मैं 1 घंटे के बाद रात को 2 बजे अपना फ़ोन चेक करता हूँ और मेल चेक करता हूँ तो I have received some of the pin codes from LinkedIn where the pin codes were to change the email and to change the password. Ultimately when I tried to log in into my LinkedIn, I was officially logged out of my account and somebody hacked the account. It was an Indian person only that can be seen when we did the OSINT and everything ultimately, and he was using Opera browser and ultimately was on let's say this proxy settings and all were on, so you were able to locate some IP addresses, locate some locations and everything. But ultimately about when we gave that information to LinkedIn then sorted it out at 4 a.m. in the night, and ultimately then LinkedIn gave back the account right around 6 a.m. in the morning. So ultimately it's all about broken access control and and broken access control have a lot of vulnerabilities. So if someone is able to do this broken access control on LinkedIn, it might be a 0-day vulnerability that has not known by the LinkedIn, but still there are attackers or there might be scammers or some people right who actually know about that or who might have hunted it, right. And there are multiple vulnerabilities that are there in multiple banking systems and multiple even on Amazon and Flipkart as well, and you don't know about it. If you go ahead and if you find it, अगर आप उसको ढूंढते हो तो आपको मिल जाती है, बट अगर आप नहीं ढूंढोगे आपको लगेगा कि यार ये तो बहुत बड़ी बात है, बट जब आप ढूंढोगे तो वो बहुत छोटी वल्नरेबिलिटी भी होती है. कुछ लोग इसको सिक्योरिटी की तरह देखते हैं और वो इसको रिपोर्ट कर देते हैं कि हमारा कर्तव्य या हमारा धर्म है कि हम इसको रिपोर्ट करें और सिक्योर करें कम्युनिटी को. कुछ लोग पैसों के लिए जो है आगे रिपोर्ट कर देते हैं सो दैट मेरे को बाउंटी मिल जाएगी. कुछ लोग उसको रिपोर्ट नहीं करते, अपने पास रखते हैं बट उसका इस्तेमाल गलत तरीके से नहीं करते. और एक 4th कैटेगरी है जो उसका इस्तेमाल गलत तरीके से ही करते हैं. सो अल्टीमेटली यू हैव ऑल योर ऑप्शंस. इफ़ यू फाइंड अ वल्नरेबिलिटी इट्स टोटली अपॉन यू. आपको वाइट जोन में रहना है, आपको हॉल ऑफ फेम्स चाहिए, आपको फेम चाहिए, या फिर आपको डार्क मोड में रहना है.
सी फेम एंड डार्क मोड एक साथ नहीं आता, कूल लगता है बट डार्क मोड आपको अपने पास रखना पड़ता है, आप बाहर जाकर वो चीज़ नहीं दिखा सकते, राइट। सो दैट इज़ अ बेसिक थिंग। एंड यहाँ इंजेक्शंस की बात हम लोग आज करेंगे। इंजेक्शंस में अगर मैं बात करूँ तो A03 2021 इंजेक्शंस हमारे पास यहाँ आ जाते हैं। एंड इंजेक्शंस बेसिकली यहाँ पर जो मेनली है, हमारे पास 3-4 तरीके के इंजेक्शंस होते हैं, राइट। वी एक्चुअली हैव सीक्वल इंजेक्शंस, वी हैव एक्सेसिस इंजेक्शंस, वी हैव होस्ट हेडर इंजेक्शंस, कमांड इंजेक्शंस, और ये अलग अलग टाइप के जो इंजेक्शंस हैं ना वो यहाँ पर काम करते हैं, राइट। एंड ऑल दीज इंजेक्शंस एक्चुअली आर द मेन थिंग। इसके ऊपर बहुत सारे CWEs एंड CVEs मैप्ड है, right, and all these are vulnerabilities which you can click and actually understand, and all these are actually given directly on the web। तो आप अपने हिसाब से जाकर के चीज़ों को देख सकते हो कि किस तरीके से ये काम करती है, कैसे करती है, राइट। नाउ आई वुडेंट सजेस्ट यू, बट हाँ कहीं ना कहीं अगर आप जाते हो तो देर आर अ लॉट ऑफ वेबसाइट्स, हमारे आस पड़ोस के देशों की मैं नाम नहीं लूँगा, आस पड़ोस की कंट्रीज़ की हमारे बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, राइट, विच आर वल्नरेबल टू दीज अटैक्स, एंड मेनी ऑफ दी न्यू साइबर सिक्योरिटी पीपल प्रैक्टिस करने के लिए वो वहीं जाते हैं, राइट। एंड नेबरिंग कंट्रीज अल्टीमेटली आर स्टिल वर्किंग ऑन PHP एंड स्टिल वर्किंग ऑन SQL। सो अल्टीमेटली वहाँ पर बेसिकली ये SQL इंजेक्शन अटैक्स बहुत आराम से मिल जाते हैं, राइट। यूजुअली अगर बात करें तो आप SQL इंजेक्शन से कोई भी एक लॉगिन एक्सेस ले सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं वल्न वेब के ऊपर जाऊँ, जस्ट टू शो यू हाउ दिस थिंग पर्टिकुलरली वर्क्स, एक्यूनेटिक्स करके एक सिक्योरिटी स्कैनर है, उन लोगों ने ये टूल्स यहाँ पर बना रखे हैं, राइट, विच कुड बी यूज जस्ट फॉर प्रैक्टिस और समथिंग, राइट। So we have test php.vulnweb which is working on PHP, MySQL and all this thing. So if you go into a login over here, let's just simply say आप sign up में जाते हो, या फिर not sign up, or there would be a login page over here somewhere, your profile. So you have to actually log in over here, right। और जब आप लॉगिन करते हो तो लॉगिन के लिए आपको यहाँ पे यूज़र नेम और ID टेस्ट दे रखा है। इफ़ यू टाइप एनी अदर थिंग ओवर हियर, इट वुड नॉट लॉग इन और इट वुड एक्चुअली कम बैक टू द सेम पेज। कई बार यहाँ पे एरर भी आ जाता है, राइट, दैट यहाँ पर हमारे पास वी बेसिकली गेट द एरर, प्लीज़ टाइप द पासवर्ड अगेन, और इनकरेक्ट यूज़र नेम पासवर्ड, ऐसे एरर आ जाता है अगर हम कुछ गलत डालें तो। टेस्ट इज द ऑफिशियल यूज़र नेम पासवर्ड विच वी कैन यूज़, राइट, ऑन दिस पर्टिकुलर लैब, बट बिकॉज इट्स अ PHP application and it's running an older version of PHP, what I can see over here, it's running on Nginx server on Ubuntu, and ultimately Nginx server के अंदर यहाँ पर PHP चल रहा है और PHP is working। तो अल्टीमेटली मैं क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पर एक सिंपल सा SQL इंजेक्शन लिख सकता हूँ विच वुड अल्टीमेटली टेक मी इनसाइड दिस पर्टिकुलर थिंग, राइट। तो मैंने ये लिखा, मैंने इसको कॉपी किया और मैंने पेस्ट किया, और पेस्ट करने के बाद नाउ इफ आई क्लिक ऑन लॉगिन बटन ओवर हियर, यू विल बी एबल टू सी कि यहाँ पे डायरेक्टली लॉगिन हो जाता है। किसी ने यहाँ स्क्रिप्ट्स लिख करके प्रैक्टिस कर रखी है फॉर एक्सेसिस इंजेक्शंस एज वेल। नाउ दिस इज बेसिकली द अदर पीपल कमिंग इन एंड प्रैक्टिसिंग। द मेन पॉइंट इज दैट यहाँ पर हमारे पास डायरेक्टली एक्सेस आ गया है उसके अकाउंट का, वी आर एबल टू एक्चुअली लॉग इन इनटू दिस पर्टिकुलर थिंग। कई बार लॉगिन से ज़्यादा आप URL बेस्ड इंजेक्शंस भी कर सकते हो, एंड यू वुड एक्चुअली बी एबल टू डायरेक्टली get a database, you can directly read the database of many of the websites, और जब आप database read कर पाते हो तो ultimately आप कुछ भी कर सकते हो, but for that you need to actually understand how SQL injections work. This vulnerability is so high end vulnerability that अगर आपको कोई भी पैरामीटर मिल जाता है SQL injection करने के लिए, and if the injections are happening over there, you can actually alter the data, and this vulnerability specially allowed me, जब मैं अपने फर्स्ट ईयर में था, when I was in my first year and the second semester result came out, I was learning SQL injection, और बहुत मैंने एक PHP cookbook पढ़ रखी थी, right, if you are a developer you might be knowing it। एक cookbook आती है PHP और SQL की, and this cookbook is a very लॉन्ग बुक, राइट, मतलब छोटी मोटी बुक नहीं होती। PHP, SQL और पूरे अपाचे की एक कुक बुक आती है, राइट, एंड सो लाइक 800 to 900 पेजेस की होती है ये, ओराइली की, एंड अल्टीमेटली इट वाज इन माय लाइब्रेरी बैक देन व्हेन आई वाज इन इन द कॉलेज। तो जब मैं इसको पढ़ने बैठा, आई रेड PHP कुक बुक, आई रेड SQL कुक बुक, एंड अल्टीमेटली दोनों एडिशन बिल्कुल सेम यही फ़ोटोज़ थी उनके ऊपर, एंड ये एडिशंस दोनों पढ़ने के बाद आई गॉट टू नो अ लॉट अबाउट PHP, हाउ इट वर्क्स एंड हाउ SQL वर्क्स, राइट। अल्टीमेटली मैं डेटाबेसेस बना सकता था SQL के अंदर, एंड उनको कनेक्ट कर सकता था, एक पूरा एप्लीकेशन क्रिएट कर सकता था। आई कुड क्रिएट एनी काइंड ऑफ प्रोजेक्ट, राइट, आप मेरे को एक प्रोजेक्ट हो, आई कुड बी एबल टू क्रिएट अ कुकी सेशन एंड एवरीथिंग, आई कुड राइट अ होल वेबसाइट एट दैट टाइम। सो अल्टीमेटली ये सब चीज़ें मैंने सीखी थी इन माई फर्स्ट सेमेस्टर, बिकॉज इन माई फर्स्ट सेमेस्टर इट वॉज ओनली C++, कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर, 2 ही सब्जेक्ट थे, एंड
आई वॉज ऑल्सो नोइंग अबाउट द सेम थिंग्स अर्लियर व्हेन आई वाज इन माय 11th-12th, तो वो चीज़ें पहले से पढ़ी थी तो खाली टाइम होता था. तो ये पढ़ने के बाद इन द सेकेंड सेमेस्टर आई वॉज इन दिल्ली यूनिवर्सिटी अगेन, सो आई वॉज गेटिंग टाइम. ठीक है, बीटेक वाले ये ट्राई मत करना फर्स्ट ईयर में, बहुत सारे अलग सब्जेक्ट्स होते हैं, सेकेंड ईयर से फिर भी कर सकते हो. बट आई वॉज इन माई BSc ऑनर्स कंप्यूटर साइंस, तो DU में आपको काफ़ी टाइम मिलता है. सो DU का रिजल्ट आया फर्स्ट सेमेस्टर का. I was in my second semester and the result came out. I saw the website, just what was working on ASP or PHP. It's the same thing. I'll tell you about that in this session later on. Right, so ASP website थी, I got to know ASP है, उसके साथ साथ इसके ऊपर SQL चल रहा है. I was basically checking the result. तो result page के अंदर क्या होता है कि आपको basically let's see if we can have DU result portal photo or over here or not, right, so that we can actually see it. तो बेसिकली होता क्या है, जब भी आप रिजल्ट देखने जाते हो DU के पोर्टल में, तो ये आपसे पहले तो कुछ इस तरीके का पोर्टल होता है, राइट. इट आस्क्स यू फॉर योर कॉलेज नेम, राइट. आप किस तरीके के स्टूडेंट हो, रेगुलर हो या नहीं हो. रोल नंबर पूछता है, स्टूडेंट नेम नहीं पूछता था, और डेट ऑफ बर्थ भी पहले नहीं पूछता था. सिर्फ 2-3 चीज़ें पूछा करता था, स्टूडेंट टाइप, कॉलेज नेम एंड एग्जाम रोल नंबर. तो एग्जाम रोल नंबर के अंदर मैंने यहाँ पे रोल नंबर की जगह वही यहाँ पे चीज़ दी जो मैंने इधर दी थी. अल्टीमेटली आई गेव द सेम पर्टिकुलर थिंग ओवर हियर, दिस काइंड ऑफ थिंग. और जैसे ही मैंने इसको यहाँ कॉपी पेस्ट किया और सबमिट किया, आई गॉट अ रैंडम रिजल्ट कार्ड ऑफ द कॉलेज आई सेलेक्टेड. नाउ द पॉइंट वॉज कि इस पर्टिकुलर कॉलेज का मेरे को जो रैंडम रिजल्ट मिला, वो मुझे पता लगा कि इट वॉज एक्चुअली कमिंग फ्रॉम द पर्सन जिसका नाम A से स्टार्ट होता है, राइट. एंड अल्टीमेटली मेरे को ये बात समझ में आई कि इसका रिजल्ट डेटाबेस के अंदर शायद पहले डाला होगा, राइट. तो द पॉइंट इज़ कि हम क्या कर सकते हैं और कैसे इसको एक्सप्लॉइट कर सकते हैं. तो उसके लिए फिर मैंने इसको एक्सप्लॉइट किया, एंड आई वॉज ऑल्सो एबल टू चेंज द रिजल्ट of anybody over there, right. I got that particular vulnerability after working on it 2-3 days, and when I reported it to the HOD, राइट, उन्होंने पहले तो डरा दिया कि आप डायरेक्टली DU के ऑफिस में जाओगे तो आपको सिंपली एज अ क्रिमिनल घोषित कर दिया जाएगा, दैट आपने ऐसे ऐसे काम किया है बिना परमिशन के, आई विल हेल्प यू. बट हेल्प के मामले में उन्होंने हेल्प तो कुछ नहीं करी, आगे कोई बात भी नहीं हुई इस बारे में. शाम के 6 बजे तक, सुबह के 8 बजे मैंने उनको वल्नरेबिलिटी बताई, 10 बजे तक शाम के 6 बजे तक ये फिक्स हो गई. एंड इंडिया बीइंग इंडिया, यू डू नॉट गेट एनीथिंग इन रिटर्न, राइट. फिक्स कैसे हुई, देयर वॉज बेसिकली दिस डेट ऑफ बर्थ एंड अ कैप्चा जो यहाँ पे आ गया, उससे पहले नहीं था. दीज ऑल दी थिंग्स केम आफ्टर 2019 एंड 2020, राइट. एंड व्हाट आई एम टेलिंग यू अबाउट इज 2018, राइट. तो ये सब चीज़ें हैं और इस तरीके से काम करती हैं. सो अल्टीमेटली एसक्यूएल इंजेक्शन इज़ वन ऑफ द वल्नरेबिलिटी जिससे बहुत कुछ हो सकता है. एंड अल्टीमेटली इन वल्नरेबिलिटीज़ को कैसे एक्सेस करना है या कैसे मेरे को लॉगिन मिला इतनी सी चीज़ से, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड टू अंडरस्टैंड दिस थिंग वी एक्चुअली नीड टू नो द फ्लो ऑफ हाउ एसक्यूएल वर्क्स, राइट. एक बार एसक्यूएल समझ में आ जाएगा तो उसके बाद इंजेक्शंस भी समझ में आएंगे. एंड देन इन द अपकमिंग सेशंस वी कैन गो इनटू एक्सेस इंजेक्शंस एंड अदर वल्नरेबिलिटीज़ एज वेल. हम आगे और भी 3-4 वल्नरेबिलिटीज़ को लेंगे, राइट, सो दैट यू गाइज कैन लर्न अबाउट इट, राइट. या एनी क्वेश्चन अदनान? Anybody, if you have any question, you can just type in the chats. Is it okay to live practice on these आसपास की countries? I would suggest कि ना ही करो तो बेटर है, बट अगर गलती से हो जाए तो कोई बात नहीं, ठीक है, क्योंकि इनका इंडिया के साथ इतना अच्छा रिलेशनशिप है नहीं, तो यू वोंट बी एक्चुअली गेटिंग यू नो एनी काइंड ऑफ इश्यूज ओवर देयर. देयर आर मोर. हाँ जी, मैं ये कर दिया सर, अपने ये ना यूज़र नेम जो कमांड अपने को जो और डॉट करके दिया, अगर मैं भी अपार्ट फ्रॉम अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी छोड़ के कोई और यूनिवर्सिटी पे जाऊँ, डेट ऑफ बर्थ ना हो, यूज़र आईडी और जब तक ये रोल नंबर और कैप्चा दे के जो लॉगिन होता होगा, जिस सेम कमांड अगर वहाँ मैं पेस्ट करूँ तो दे गिव मी सम आउटपुट करके आपको देखना पड़ेगा कि आपको आउटपुट क्या मिल रहा है. और यू हैव टू एक्चुअली चेक. देखो, सबसे पहले क्या चीज़ है ना, आपको ये देखना पड़ेगा कि आपकी वेबसाइट चल किस पे रही है, ठीक है. HTTP है ये कॉन्टेक्स्ट जो मेरे को पता है. दैट आपको बेसिकली यहाँ पर PHP चाहिए. अगर आपको PHP दिख रही है तभी ये चीज़ें काम कर पाएंगी. बट इफ़ देयर इज इनपुट सैनिटाइजेशन गोइंग ऑन तो हो सकता है प्रोटेक्टेड भी हो, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है. बिकॉज जो मॉडर्न PHP वर्जन्स हैं, लेटेस्ट PHP वर्जन्स हैं, वो एक्चुअली आपको फंक्शंस ही ऐसे प्रोवाइड कर रहे हैं कि एसक्यूएल इंजेक्शंस हो ही नहीं पाएगा. एंड अगर पुराना PHP वर्जन है तो अल्टीमेटली यू कैन ट्राई एंड यू कैन एक्चुअली चेक कि क्या आउटपुट आता है, ठीक है.
testfire.net. Let's see what this website is. Okay, so this is the website that we can use for practicing. Okay, so is it a practice website or is it a live website of something? Okay, demo site only. So this is a demo site over here and ultimately it's working on Java and Apache Tomcat. Again देखो Apache यहाँ पे काम कर रहा है तो आप कहीं ना कहीं समझ सकते हो कि PHP यहाँ काम कर रही होगी, right? And ultimately you would be able to actually get to know about a lot of things, so that you can actually see that यहाँ पे online banking का login system है. So we have a login over here which we can actually try कि क्या हम यहाँ पे भी वही सेम चीज़ अगर दे तो क्या वो पॉसिबल है, राइट, या नहीं है. सो वी कैन एक्चुअली जस्ट ट्राई दिस. वी आर एक्चुअली एबल टू लॉग इन इनसाइड दिस. तो ये चीज़ें काम कर कैसे रही हैं एंड हाउ वी एक्चुअली कैन जस्ट ट्राई टू सी दीज काइंड ऑफ थिंग्स और हाउ वी कैन एक्चुअली जस्ट ट्राई टू नो कि कैसे हो रहा है ये सब. सो एक पर्टिकुलर बात समझते हैं, ठीक है. पहले तो स्टैक्स समझ में आनी चाहिए कि एक्चुअली स्टैक्स क्या होती हैं, क्योंकि देखो स्टैक्स समझ नहीं आएगी तो आपको आगे एसक्यूएल समझ नहीं आएगा. एक बहुत बढ़िया चीज़ यहाँ पर है कि जो PHP है ना, दिस लैंग्वेज इज़ एक्चुअली क्रिएटेड फॉर एसक्यूएल, ठीक है. एसक्यूएल बाकी सारी चीज़ों के साथ काम कर जाता है बट PHP एक तरफा प्यार करता है, ठीक है. PHP का मेन काम क्या है? PHP का मेन काम है SQL के साथ आराम से रन होके काम करना एंड PHP के सारे फंक्शंस ही SQL के लिए बने हैं. बट द पॉइंट इज दैट यहाँ पर PHP जो है अगर है तो आपको साफ साफ पता चल जाता है क्योंकि यहाँ पे PHP है, दैट मीन्स वी ऑल्सो हैव दिस पर्टिकुलर थिंग कॉल्ड एज SQL रनिंग ओवर हियर. तीन चीज़ें हैं. देखो यहाँ पर हमारे पास मेन जो ये PHP है ये तो काम करता ही करता है. ये किसके साथ काम करता है? ये काम करता है आपके फ्रंट एंड के साथ, राइट. सो आपका फ्रंट एंड यहाँ काम कर रहा होता है, दिस फ्रंट एंड इज हेयर, और फ्रंट एंड के अंदर आपका HTML काम कर रहा है. HTML के साथ यू हैव CSS वर्किंग ओवर देयर, यू हैव जावास्क्रिप्ट वर्किंग ओवर देयर, राइट. PHP के साथ यहाँ पर एक लैंग्वेज काम कर रही है जिसको मैं SQL बोल रहा हूँ और SQL इधर है. SQL के अंदर क्या है? एक पूरा डेटाबेस बना हुआ है, राइट. सो इट्स अ डेटाबेस लैंग्वेज. यहाँ पे एक प्रॉपर डेटाबेस है और एवरी डेटाबेस हैव सर्टेन टेबल्स ओवर हियर, राइट. जैसे ये एक पर्टिकुलर मैं मान लेता हूँ टेबल है, फिर एक और टेबल आ जाता है, फिर एक और टेबल आ जाता है. ये एक डेटाबेस हो गया, राइट. डेटाबेस इज अ कलेक्शन ऑफ टेबल्स, राइट. एंड टेबल इज अ कलेक्शन ऑफ कॉलम्स एंड अ कॉलम हैव अ कलेक्शन ऑफ डेटा सेट्स या फिर पर्टिकुलर डेटा सेल्स जिसके अंदर डेटा एक्चुअली है, राइट. सो दिस इज बेसिकली माई database over here. Now PHP is a language that connects this particular table to the HTML, राइट. मतलब जब इधर से आप कोई फ्रंट एंड में डेटा डालो वो SQL में चला जाए और SQL से कोई डेटा निकल के HTML में आ जाए, ये सारा काम मेरा PHP संभालता है, राइट. हैंस PHP इज़ अ बैक एंड लैंग्वेज. और PHP के अंदर आप एक सर्वर लिखते हो और एक बैक एंड लिखते हो. बैक एंड और सर्वर वट एवर यू कॉल इट, इट्स एक्चुअली अ वे जिससे हमें ये पता चलता है कि बेसिकली हमारा जो डेटा आ रहा है वो डेटा किस तरीके से जाएगा, कैसे प्रोसेस होगा और किस तरीके से यूज़र जो भी रिक्वेस्ट भेजता है वो किस तरीके से प्रोसेस होगी, और अगर वो रिक्वेस्ट SQL से कनेक्ट होनी है तो किस तरीके से होनी है और क्या आउटपुट आएगा. ये सारा काम मेरा PHP संभालता है. सो इट्स लाइक अ मिडल वेयर बिटवीन माई फ्रंट एंड द डेटाबेस एंड अल्टीमेटली इट्स कॉल्ड अ बैक एंड और यू कैन ऑल्सो कॉल इट अ सर्वर, राइट. PHP को रेंडर करने के लिए यू एक्चुअली नीड अपाचे और यू एक्चुअली नीड अ सर्वर टू बी इम्प्लीमेंटेड. मतलब कुछ कन्फिग्रेशंस होती हैं जिससे PHP लैंग्वेज ब्राउज़र में इंटरप्रेट हो पाए या फिर ब्राउज़र उसको समझ पाए, ठीक है. जैसे HTML की तरह नहीं है. HTML में क्या होता है? HTML में तो आपने फाइल बनाई, .html सेव किया, ब्राउज़र ने उसको रेंडर करना शुरू कर दिया और आप देखने लग गए क्योंकि ये लॉगिन है या फिर ये ऐसे है, ये ऐसे है, ये ऐसे है. यू आर एक्चुअली एबल टू अंडरस्टैंड द कोड, राइट द कोड, और ब्राउज़र डायरेक्टली समझ जाता है, राइट. बट PHP में आपने जब कोड लिखा तो ब्राउज़र उसको डायरेक्टली नहीं समझता. उसको समझने के लिए ब्राउज़र को बेसिकली एक सर्वर या फिर एक प्रॉपर इंटरप्रेटर चाहिए होता है जो उसको इंटरप्रेट करे. उसको हम यहाँ पे एक्चुअली सर्वर एप्लीकेशन बोलते हैं. एंड दिस कुड बी एनीथिंग, राइट. जैसे अपाचे हो सकता है, राइट. इट कुड ऑल्सो बी टॉमकैट, इट कुड ऑल्सो बी Nginx, and there are multiple other servers that are there, right. Apache was actually built for PHP and all these things. Tomcat को usually बनाया गया था ASPX या फिर ASP के लिए, right. So ultimately AXPX और ये क्या है? Tomcat जो है वो आपका एक्चुअली काम करता है माइक्रोसॉफ्ट के IIS सर्वर के ऊपर, राइट. जितने भी आपके माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर्स होते हैं या फिर विंडोज़ सर्वर्स होते हैं उनके ऊपर एक्चुअली आपका ये जो मेन चीज़ है ये काम करती है. और
ये जो है क्या कहते हैं माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर्स, दीज आर एक्चुअली योर विंडोज़ सर्वर, राइट। आपके विंडोज़ RT सर्वर्स होते हैं विच वर्क ऑन विंडोज़ 2016 वर्जन ऑफ विंडोज़ 10 और विंडोज़ 7, राइट। एंड अल्टीमेटली इसके अंदर और भी वल्नरेबिलिटीज़ प्रेजेंट हो सकती हैं, सो यू कैन एक्चुअली हैक इनटू देम, राइट, एज वेल। देन अपाचे सर्वर्स जो होते हैं वो आपके यूजुअली आपको मिलेंगे हमारे उबुंटू और लिनक्स सर्वर्स के ऊपर। तो जितने भी लिनक्स सर्वर CentOS उबुंटू जैसे होते हैं उनके ऊपर आपको बेसिकली अपाचे सर्वर देखने को मिलेगा। Nginx भी बेसिकली आपको उबुंटू पे यूजुअली देखने को मिलेगा आज की डेट में, बिकॉज Nginx अगर कोई इस्तेमाल कर रहा है तो वो बहुत ज़्यादा मॉडर्न इंसान है ही। अल्टीमेटली सिक्योरिटी का भी वो ध्यान रखेगा, बिकॉज Nginx थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड भी होता है इसको सेटअप करना एंड सब काम करना। एंड इट्स अ रियली गुड सर्वर, इट कैन हैंडल अप PHP, इट कैन ऑल्सो हैंडल बहुत सारी बैकएंड लैंग्वेजेस ये हैंडल कर सकता है, राइट। इट कुड ऑल्सो हैंडल योर पर्ल लैंग्वेज, राइट। अपाचे भी पर्ल लैंग्वेज कहीं ना कहीं हैंडल कर लेता है। देन उसके साथ साथ ये Node.js को भी एज अ बैकएंड लैंग्वेज हैंडल कर सकता है। देन इट कुड ऑल्सो हैंडल दीज काइंड ऑफ थिंग्स लाइक व्हाट वी कैन हैव, पाइथन की जो लाइब्रेरीज होती हैं, बेसिकली जो पाइथन के सर्वर्स होते हैं, Django एंड फ्लास्क, उनको भी हैंडल कर लेता है। तो ये बेसिकली जो है ना आपकी ये सारी बैकएंड लैंग्वेजेस है, PHP हो गई, पर्ल हो गई, रूबी इज़ ऑल्सो देयर, रूबी ऑन रेल्स। तो रूबी भी आपकी जो है बैकएंड लैंग्वेज हो गई जिसमें आप सर्वर लिख सकते हो और एक्चुअली यू कैन क्रिएट सर्टेन मिडलवेयर की बेसिकली फ्रंट एंड और आपका डेटाबेस कैसे इंटरैक्ट करेगा। तो वो इंटरैक्शन आप इनमें से किसी भी भाषा में लिख सकते हो। और जो SQL है ना वो इनमें से किसी के साथ भी काम करने को रेडी है, राइट। मतलब आप किसी के साथ भी काम करा दो, SQL हर एक के साथ काम करने को रेडी है। बट PHP बनाई ही SQL के लिए गई थी, राइट। PHP वॉज ओनली क्रिएटेड फॉर SQL। और इससे क्या होता है कि SQL बेसिकली एक SQL तो सबके साथ चल रहा है, बट PHP इज़ लाइक अ वन साइडेड लवर, क्योंकि इसके सारे फंक्शंस SQL के लिए बने हुए हैं। एंड अल्टीमेटली you can run queries, you can connect SQL variables and everything directly with the PHP code over here. तो यूजुअली जब भी SQL चल रहा होता है तो PHP का ही इस्तेमाल किया जाता है टू मेक इट ईजियर एंड टू मेक इट वेल। बड़ी वेबसाइट्स में आप देखोगे तो SQL PHP के साथ नहीं बल्कि Node.js के साथ या फिर Ruby के साथ काम करता हुआ दिखेगा आपको प्रोफेशनल वेबसाइट्स में, जो कि थोड़ी और ज़्यादा मॉडर्न और स्पीडी होती हैं, राइट। बट नॉर्मली जैसे अगर मैं बोलूँ वर्डप्रेस आप चला रहे हो, वर्डप्रेस इज़ अ CMS, राइट, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, जहाँ पे आप बिना कोडिंग के वेबसाइट्स क्रिएट कर सकते हो और बहुत सारे प्लगइन्स डाल करके बहुत अच्छे से थीम्स डाल करके सेटअप कर सकते हो। देन यू हैव वर्डप्रेस के अलावा ड्रूपल, राइट। मैं CMS सिस्टम की बात कर रहा हूँ निखिल, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट बूटस्ट्रैप, राइट। बूटस्ट्रैप जो होता है ना, बूटस्ट्रैप आपका फ्रंट एंड लैंग्वेज है, राइट। मतलब आप CSS और जावास्क्रिप्ट को रिप्लेस करके बूटस्ट्रैप डाल सकते हो सीधा, तो इट विल मेक योर वर्क ईजी। React.js भी इसी का एक जावास्क्रिप्ट का ही एक पर्टिकुलर मैं बोलूँगा एक फ्रेमवर्क है जो कि फ्रंट एंड के काम आता है। तो ये फ्रंट एंड अच्छा दिखने के लिए बनाए जाते हैं, React.js, बूटस्ट्रैप वगैरह। Node.js ऑन द अदर हैंड इज़ अ बैक एंड लैंग्वेज, ठीक है। Node.js बैक एंड लैंग्वेज है और वो काम करता है आपका, वो बूटस्ट्रैप के साथ भी काम कर सकता है और वो React के साथ भी काम कर सकता है, राइट। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं वर्डप्रेस और ड्रूपल की, विच आर एक्चुअली द होल CMS, जिसके अंदर फ्रंट एंड बैक एंड सब कुछ मिलता है आपको। एंड ऑल यू हैव टू डू इज इसको अपने सर्वर पे इंस्टॉल कर लिया, जैसे वर्डप्रेस को मैंने अपने लिनक्स पे इंस्टॉल कर लिया, एंड अल्टीमेटली आई कैन क्रिएट अ वेबसाइट विदाउट एनी कोडिंग इन्फॉर्मेशन। मैं सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा और अल्टीमेटली एक पूरी वेबसाइट रेडी कर सकता हूँ। तो कोई भी पोस्ट डाल सकता हूँ वेबसाइट पर, कोई नया पेज बना सकता हूँ, हर चीज़ कर सकता हूँ, और जो नहीं हो रहा उसको प्लगइन्स के थ्रू कर सकता हूँ। तो इस तरीके से मेरा वर्डप्रेस काम करता है। तो वर्डप्रेस और ड्रूपल ऐसे जैसे CMS बनाए जाते हैं जब, तो इनको आसानी से बना के क्रिएट करने के लिए इनको PHP और SQL पे ही रखा जाता है। सो अल्टीमेटली इफ़ यू फाइंड SQL इंजेक्शन इन अ वर्डप्रेस वेबसाइट ऑफ अ सर्टेन वर्जन, तो आप सारी वर्डप्रेस वेबसाइट्स जो उस वर्जन पे चल रही है उनके PHP में भी वो सेम वल्नरेबिलिटीज़ निकाल सकते हो, राइट। तो इस तरीके से चीज़ें चलती हैं। सो PHP एंड SQL आर स्टिल पर्टिकुलरली यूज। फेसबुक वॉज ऑल्सो क्रिएटेड ऑन PHP SQL, और अब तो उन्होंने मिटिगेट करके मतलब माइग्रेट करके दे हैव कन्वर्टेड देमसेल्व्स इनटू मर्ज स्टैक। MongoDB, Express, React और Node.js का वो लोग इस्तेमाल करते हैं। नाउ द पॉइंट इज दैट ये जो जितने भी PHP वेबसाइट्स हैं, ऑल दीज PHP वेबसाइट्स आर एक्चुअली, आई कैन नॉट से कि सारी वल्नरेबल हैं, लेकिन ये वल्नरेबिलिटी तब अराइज होती है जो SQL इंजेक्शन की है जब इनपुट सैनिटाइजेशन नहीं हो रहा होता बैकएंड में। व्हाट डू आई मीन बाय इनपुट सैनिटाइजेशन? इसको समझने के लिए पूरा फ्लो समझते हैं SQL इंजेक्शंस का, ठीक है। तो एक फ्लो समझने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर कुछ डेटा लिख रहा हूँ
राइट, एंड यू विल बी एक्चुअली एबल टू अंडरस्टैंड दैट पर्टिकुलर डेटा। तो यहाँ पर मैं डेटा लिख देता हूँ, राइट। सो दिस इज़ बेसिकली माई HTML, राइट। और ये HTML क्या है? दिस HTML इज़ माई फ्रंट एंड, आई नो दैट दिस इज़ माई फ्रंट एंड ओवर हियर। HTML के बाद फिर हम यहाँ पे एक कलर और ले लेते हैं दूसरा, एंड लेट्स बेसिकली राइट ओवर हियर दिस इज़ माई PHP एंड दिस इज़ बेसिकली माई बैक एंड ओवर हियर। ये मैंने अभी बताया। सो दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। और उसके साथ साथ मैं यहाँ पर एक चीज़ और ले लेता हूँ उठा करके, राइट, माई SQL। सो दिस इज़ माई SQL एंड दिस इज़ बेसिकली माई डेटाबेस, राइट। तो ये हो गया मेरा डेटाबेस यहाँ पर। सो दिस इज़ हाउ इट पर्टिकुलरली वर्क्स ओवर हियर। अब इसी के साथ साथ मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे बेसिकली कुछ टेबल्स और मतलब कुछ चीज़ें बना लेता हूँ। लेट्स से कि यहाँ SQL का ना एक प्रॉपर डेटाबेस बना हुआ है, राइट, एंड दिस डेटाबेस, और लेट्स से देयर इज़ अ टेबल ओवर हियर, और दिस टेबल एक्चुअली हैव द यूज़र IDs एंड पासवर्ड स्टोर, राइट। सो ये हो गया आपका सीरियल नंबर, ये हो गई आपका यूज़र नेम। यूज़र नेम को यहाँ पे यूनेम कॉलम के नाम से स्पेसिफाई किया है मैंने, और पासवर्ड कॉलम को मैं पास नाम से स्पेसिफाई कर रहा हूँ, राइट। और यहाँ पर सबका डेटा पड़ा है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, सारे एडमिन्स का डेटा पड़ा है, सारे नॉर्मल यूज़र्स का डेटा पड़ा है। तो ये बेसिकली सबका डेटा संभालता है, एंड द नेम ऑफ द टेबल इज़ यूज़र्स, राइट। इस टेबल का नाम है यूज़र्स, मैं ये बोल देता हूँ। नाउ इफ़ आई टॉक अबाउट द फ्रंट एंड, तो फ्रंट एंड के अंदर क्या है? फ्रंट एंड के अंदर बेसिकली एक पूरा ऐसे ईमेल और पासवर्ड भरने का डब्बा है, और यूज़र नेम या पासवर्ड भरने का डब्बा है, एंड एक्चुअली हैव अ लॉगिन बटन ओवर हियर, राइट। और यहाँ पर ऊपर क्या होगा, यहाँ पर बेसिकली यूज़र नेम ये मांगेगा कि बेसिकली आप यूज़र नेम इनपुट करके दे दो, और इधर मांग रहा है पासवर्ड, राइट। सो अल्टीमेटली जैसे ही आपने यहाँ पे लॉगिन बटन पे क्लिक किया, जैसे ही यू क्लिक्ड ऑन द लॉगिन बटन, हुआ क्या कि बेसिकली वंस यू क्लिक ऑन द लॉगिन बटन, जैसे ये प्रेस हुआ, तो दिस यूज़र नेम वेरिएबल एक्चुअली वेंट इनटू PHP एंड दिस पासवर्ड ऑल्सो वेंट इनटू PHP, जहाँ पर बेसिकली 2 वेरिएबल्स बने हुए हैं, राइट। दिस पर्टिकुलर वेरिएबल्स आर क्रिएटेड इन PHP। एक वेरिएबल बना है यूज़र नेम नाम से, राइट, यूज़र नेम, और एक वेरिएबल बना हुआ है पासवर्ड के नाम से। तो हुआ क्या कि बेसिकली जैसे ही आपने लॉगिन बटन को प्रेस किया, यूज़र नेम के अंदर से जो भी HTML के फॉर्म के अंदर यूज़र नेम आपने दिया था, उसका यूज़र नेम निकल के यूज़र नेम वाले के अंदर आ गया, और पासवर्ड निकल के पासवर्ड वेरिएबल के अंदर आ गया, एंड दीज वेरिएबल्स आर एक्चुअली स्टोर्ड इनसाइड PHP में ये वेरिएबल्स ऑलरेडी हमारे बने हुए हैं, स्टोर्ड हैं, ठीक है। अब हुआ क्या कि PHP ने बिकॉज इट इज़ ऑलरेडी कनेक्टेड विद SQL, राइट, आराम से कनेक्शन तो मेंटेन्ड है ही, तो हो क्या रखा है यहाँ पे, PHP एक पर्टिकुलर कमांड भेजेगा SQL को, और उस कमांड से चेक हो जाएगा कि ये बेसिकली एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते हैं हमारे SQL के अंदर, ठीक है। सो लेट्स सी ओवर हियर हाउ इट हैपन्स। बेसिकली क्या कमांड होगा? सो द कमांड वुड बी समथिंग लाइक दिस, राइट। आई विल बी राइटिंग द कमांड ओवर हियर, राइट। मैं ग्रीन कलर से लिखूंगा। बेसिकली यहाँ पर मेरा जितना भी PHP का पार्ट है वो आप यहाँ पे देख सकते हो, राइट। सो सेलेक्ट ऑल फ्रॉम, right, and then ultimately we have users, तो we have users coming in from our database language, right। so यहाँ पे users को हम blue color से color code कर देते हैं, so that actually you can understand कि क्या हो रहा है। तो users table मेरा कहाँ से आ रहा है? users table मेरा SQL से आ रहा है, and this is the main thing, right। users where, right, and I have to take my username variable, right, where username variable, or sorry, where this uname, राइट, ये वाला यूनेम होना चाहिए इसके इक्वल, यूज़र नेम के इक्वल, और ये वाला पासवर्ड होना चाहिए इस पासवर्ड के इक्वल जो इसके अंदर आ रहा है। इससे हम क्या पता लगाएंगे कि बेसिकली एक ही रो में दोनों चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं या नहीं, बिकॉज दैट इज़ व्हाट वी हैव टू सी। लॉजिक के हिसाब से क्या देखना है कि ये वाला यूज़र नेम इधर होना चाहिए, राइट, और ये जो पासवर्ड है वो इधर होना चाहिए, एक ही रो में होने चाहिए। दूसरे रो में तो हो ही नहीं सकते ना, बिकॉज यूज़र नेम इज़ अ यूनिक आइडेंटिटी, जैसे इंस्टाग्राम पे होता है, लिंक्डइन पे होता है, हर जगह यूज़र नेम इज़ अ यूनिक आइडेंटिटी ओवर देयर। तो अल्टीमेटली हमें वो चीज़ पता लगानी है। सो लेट्स जस्ट गो अहेड एंड टाइप इन ओवर हियर फ्रॉम यूजर्स वेयर, लेट्स जस्ट हैव ब्लू कलर ओवर हियर, वेयर आर यू नेम शुड बी इक्वल टू, इसको मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ। सो यू नेम शुड बी इक्वल टू, अब ये यू नेम किसके इक्वल है ये आप यहाँ पर देखो, राइट, वेयर दिस यू नेम शुड बी इक्वल टू, मैंने इसको ब्लू कलर से लिया है, इसका जो एपोस्ट्रोफी है, राइट, एंड अल्टीमेटली आई विल बी टेकिंग ओवर हियर विथ द ग्रीन कलर, शुड बी इक्वल टू यूज़र नेम वेरिएबल, राइट, मतलब ये जो मेरा यू नेम है टेबल के अंदर ये यूज़र नेम वेरिएबल के बराबर होना चाहिए। अगेन आई हैव टू जस्ट चेंज द कलर फॉर दिस,
right? So this is actually the point. ये sorry, where is our apostrophe? Yeah, so we have this over here. Now there is one more condition over here. uname तो हो ही रहा है, but इसके साथ साथ एक चीज़ यहाँ पर और आएगी, that is actually our comparison of password. तो पासवर्ड को मैं यहाँ पे लूँगा एंड कंडीशन के साथ, राइट? सो इट वुड बी एंड कंडीशन, बिकॉज एंड कंडीशन की होगी क्योंकि अल्टीमेटली आप दोनों को चेक करना चाहते हो ना. यू वांट टू एक्चुअली चेक यूज़र नेम एज वेल एंड पासवर्ड एज वेल, कि दोनों एक ही साथ मिल जाए. ऐसा तो है नहीं कि यूज़र नेम और पासवर्ड करोगे, बिकॉज अगर और लगा दिया तो अल्टीमेटली इफ़ एनीथिंग वुड बी ट्रू, पूरा कंडीशन ट्रू हो जाएगा. बट हमें दोनों चेक करने कि इस यूज़र नेम का यही पासवर्ड होना चाहिए. तो मैंने यहाँ पर एंड लगाया. एंड लगाने के बाद अगेन आई हैव टू गिव द पासवर्ड वेरिएबल ओवर हियर. So we have password, right? So PASS, and then we can have this thing over here. इसको हम बड़ा लिख सकते हैं. We have space, right? So we have $password over here, right? So this we actually have, and इस तरीके से एक मेरी query बन जाएगी और ये query basically मेरा PHP आगे भेजेगा. So this is actually the query that is created and our PHP will actually send this query further. अब आप अगर ध्यान से देखो, right, if you see very correctly over here, this is how the query is working, right? Select all from users, basically select everything from the users table. जहाँ पे मेरा user name, let's say मैंने यहाँ पे दिया 123 और मैंने पासवर्ड में दिया XYZ, राइट? सो 1 2 3 और XYZ मान लो यहाँ पर स्टोर्ड है. तो हुआ क्या कि इसने चेक किया कि यूनेम के अंदर भी यहाँ पे 1 2 3 आ गया, राइट? और सॉरी यूज़र नेम के अंदर और पासवर्ड वेरिएबल के अंदर XYZ आ गया. अब ये चेक कर रहा है क्या 1 2 3 है? हाँ है. एंड पासवर्ड में XYZ है? हाँ है. तो ये वाली पूरी की पूरी रो आउटपुट में रिटर्न हो जाएगी. ठीक है, ये वाली पूरी की पूरी रो आउटपुट में रिटर्न हो जाएगी. और फिर हम बेसिकली बोलेंगे हाँ आउटपुट में, क्योंकि रो एक रिटर्न हुई तो जो हमारा आउटपुट होगा इस पूरी लाइन का वो ट्रू होगा, राइट? बट अगर मान लो यहाँ पे पासवर्ड एग्जिस्ट नहीं करता हुआ यही वाला, तो ये रो रिटर्न नहीं होगी. दिस रो वोंट बी रिटर्न एज द आउटपुट. एंड बिकॉज आउटपुट रिटर्न नहीं हुआ, आउटपुट में 0 आया, आउटपुट में कुछ भी नहीं आया, तो अल्टीमेटली इसका आंसर होगा फॉल्स और आपको डेटा डैशबोर्ड एक्सेस ना मिल करके आपको वापस लॉगिन पेज पे भेज दिया जाएगा. वो लॉजिक इसके बाद लिखा होता है कि अगर ट्रू आया है तो उसको बेसिकली इस वाले पेज पे रीडायरेक्ट कर दो, अगर फॉल्स आया तो उसको वहीं पे रहने दो और लॉगिन करने को फिर से बोलो. सो दिस इज़ एक्चुअली हाउ वी हैव टू वर्क अपॉन. अब कुछ ऐसा समझो कि यहाँ पर हो क्या रहा है कि 1 2 3 XYZ की जगह हमने वही सेम कोड भेज दिया विच वी एक्चुअली यूज्ड फॉर SQL इंजेक्शन. वो कोड क्या था? दैट पर्टिकुलर कोड फॉर एपोस्ट्रोफी और (1) इज इक्वल टू (1). सो दिस वॉज एक्चुअली द मेन थिंग, राइट? ये चीज़ यहाँ पर आ रही थी जहाँ पे हमारे पास वी हैड दिस पर्टिकुलर apostrophes and everything over here. Now this particular point, right, you can see over here, this particular point is the main thing. अब यही चीज़ आपने इधर डाली, इधर डाली, यही चीज़ इधर भी पहुँच गई, इधर भी पहुँच गई, और यही चीज़ यहाँ पर भी पहुँची और यही चीज़ यहाँ पर भी पहुँची है. तो ये दोनों चीज़ें इधर पहुँची हैं, राइट? बेसिकली ये सेम चीज़ इधर आई और यही सेम चीज़ उधर आई. लेट्स सी कि अगर ये सेम चीज़ इधर आ जाए और इधर आ जाए तो क्या इम्पैक्ट पड़ेगा हमारे क्वेरी के ऊपर, राइट? सो लेट्स जस्ट रिमूव दिस थिंग ओवर हियर, राइट? और ये भी यहाँ रिमूव करते हैं और यहाँ पर हम वाइट कलर का अपना इनपुट यहाँ ले आते हैं. ठीक है, सो वी विल राइट आवर इनपुट ओवर हियर. So we have this particular input and ultimately we can put it over here. Same चीज़ मैं यहाँ लिखूँगा, right? And we have this over here. अब अगर आप इस query को ध्यान से देखो, ठीक है, अगर आप इस क्वेरी को ध्यान से देखो, मैं स्पेसेस लगा देता हूँ यहाँ पे तो सो डैट आप इसको समझ पाओ, राइट? अब अगर आप इस क्वेरी को थोड़ा ध्यान से देखो तो यू विल बी एक्चुअली एबल टू अंडरस्टैंड कि ये हुआ क्या है, राइट? सो नाउ लेट्स जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ हैपनिंग इन दिस पर्टिकुलर क्वेरी. तो अगर आप इस चीज़ को बहुत ध्यान से नोटिस करो तो हुआ क्या, वेयर यू नेम इज इक्वल टू, और जैसे ही मैंने एक एपोस्ट्रोफी खुद से दिया यू नेम बंद हो गया, राइट? यू कैन एक्चुअली सी द यूज़र नेम का जो भी ये वेरिएबल था जो चेकिंग हो रही थी, हमने एक एपोस्ट्रोफी खुद से दे दिया तो उसको क्या लगा एसक्यूएल को, ओके द यूज़र नेम हैज़ बीन finished, right? The username variable has been finished and now it would search for an empty username in the table. अब पूरे टेबल में कोई empty डेटा सेट या फिर डेटा सेल तो है नहीं, तो इसीलिए बेसिकली यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो आंसर आएगा वो आएगा फॉल्स. ठीक है, सो एक फॉल्स यहाँ पर जनरेट हो जाएगा. फॉल्स के बाद फिर एक और आपने दे दिया बिकॉज अब वो अल्टीमेटली ना बाहर निकल गया,
वो एसक्यूएल की स्टेटमेंट का पार्ट बन चुका है, क्योंकि आपने यूज़र नेम तो बंद कर दिया, राइट। एंड नाउ यू हैव और ओवर हियर, सो वी हैव अ और स्टेटमेंट, एंड देन वी हैव 1 इज इक्वल टू सिंगल अपोस्ट्रोफी 1, क्योंकि बाहर के अपोस्ट्रोफी ने ऑटोमेटिकली इसको क्लोज कर दिया, तो अब हमारी कंडीशन क्या बन गई, इज़ 1 इक्वल टू 1, राइट। दिस एक्चुअली बिकम्स इज़ 1 इक्वल टू 1, क्योंकि बीच में और लगा है तो ये कंडीशन बन गई, राइट, 1 इक्वल टू 1। तो वी नो दैट 1 इज़ ऑलवेज इक्वल टू 1, इट्स एन यूनिवर्सल ट्रूथ, ठीक है। सो यहाँ पर इसकी वैल्यू बनी ट्रू। उसके साथ फिर आगे है एंड, राइट, देन वी एक्चुअली हैव एंड ओवर हियर। और फिर नीचे वाली अगर लाइन में हम देखें तो सेम चीज़ पासवर्ड के साथ हुई, राइट। यहाँ पे पासवर्ड का वेरिएबल बंद हो गया और एक खाली पासवर्ड को ढूंढा गया पूरे लिस्ट के अंदर। खाली पासवर्ड तो मिला नहीं होगा, तो अल्टीमेटली इसका भी कंडीशन आ गया फॉल्स। फिर बीच में और आया, राइट, और फिर से यहाँ पे 1 इज इक्वल टू 1 हो गया, विच एक्चुअली इज़ अ यूनिवर्सल ट्रूथ, एंड देन अगेन ट्रू। अब आप अगर इसको सॉल्व करने बैठो बूलियन अलजेब्रा के अकॉर्डिंगली, तो फॉल्स और ट्रू में कोई भी एक वैल्यू अगर ट्रू होगी तो पूरा आंसर ट्रू हो जाएगा, राइट। और एंड आएगा फिर बीच में, और अल्टीमेटली फिर से फॉल्स और ट्रू ट्रू हो जाएगा। और जब दोनों चीज़ें ट्रू हो ही गई तो यू विल एक्चुअली गेट अ ट्रू एक्सेस, और आपको लॉगिन एक्सेस मिल जाएगा। तो इस तरीके से बूलियन अलजेब्रा के ऊपर हमारा जो है ये पूरा एसक्यूएल इंजेक्शन टिका हुआ है, वेयर वी आर एक्चुअली राइटिंग ट्रू कंडीशंस and we are actually able to directly get the access of the website, right? What if we add comments in username? You can also do that. अगर आप comments add कर दो तो आगे की पूरी statement comment out हो जाएगी and you won't be able to work further, right? मतलब आप ऐसे भी कर सकते हो, आप username is equal to true कर दो, let's say that you have username is equal to 1 and then आपने इसको बंद कर दिया और आगे आपने comment दे दिए। तो comment देने से क्या होगा, आगे की पूरी statement comment बन गई और username 1 हो गया। That means इट्स लुकिंग फॉर यूज़र नेम 1 ओवर हियर। बेसिकली आपको बाहर निकलना ही पड़ेगा यूज़र नेम के, तो इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई कर लेते हैं, राइट। सो इट वुड बी यू क्लोज्ड इट और आपने यहाँ पे दे दिया और ट्रू, और उसके बाद आपने यहाँ पे कमेंट दे दिया। तो अब क्या होगा, बेसिकली यूज़र नेम आपने बंद कर दिया विच वुड बी फॉल्स, देन वी हैव ऑल और आपने ट्रू दे दिया, फिर कमेंट दे दिया, तो ये पूरा का पूरा जो हिस्सा है कमेंट बन जाएगा एंड इसी ट्रू के वजह से आपको एसक्यूएल इंजेक्शन फिर से इम्प्लीमेंट हो जाएगा। सो दिस इज़ ऑल्सो व्हाट यू कैन ट्राई, राइट। एंड अल्टीमेटली इस तरीके से बहुत सारे पेलोड्स क्रिएट किए जा सकते हैं अलग अलग एसक्यूएल के वर्जन्स के अकॉर्डिंगली, राइट। बट हाउ डू वी नो द नेम ऑफ एसक्यूएल टेबल इन एन अननोन साइट लाइक यू हैव टेकन यूजर्स ओवर हियर? दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। अब ऐसी चीज़ों के लिए देखो, यहाँ पर यूज़र्स मैंने क्यों लिया है, क्योंकि ये मेरे को नहीं पता करना, मेरे को ये चीज़ पता करनी ही नहीं है, ये चीज़ डेवलपर ने लिखी हुई है। दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट इज रिटन बाय द डेवलपर इन हिज वेबसाइट इन हिज PHP, राइट। मेरे को सिर्फ ये चीज़ डालनी है, दिस इज़ व्हाट आई एम प्रेजेंटिंग इन द इनपुट। मैं यूज़र्स से बिल्कुल भी वरीसम नहीं हो रहा हूँ, चाहे उसने कोई भी टेबल से डेटा निकाला हो, दैट इज़ नॉट माई पॉइंट। माई पॉइंट इज़ ओनली दैट आई हैव टू टाइप ओनली दिस ओवर हियर, राइट, इन द यूज़र नेम, इन द पासवर्ड, वो ऑटोमेटिकली इधर जाएगा और काम कर जाएगा, राइट, बिकॉज दिस इज़ कमिंग फ्रॉम द डेवलपर, राइट। तो यहाँ पे यूज़र्स का मेरे को कोई काम नहीं है, ना ही मैंने सोचा कि ये यूज़र्स होगा या क्या होगा, राइट। दैट इज़ द मेन थिंग ओवर हियर, ठीक है। इस चीज़ का जो मेन है वो तब होता है जब आप URL बेस्ड, यूनियन बेस्ड एसक्यूएल इंजेक्शंस करते हो, थोड़े एडवांस लेवल एसक्यूएल इंजेक्शंस, तो उसमें आपको टेबल का नाम वगैरह पता होना चाहिए। तो उसमें हम डेटाबेस में स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। पहले हम वेबसाइट के अंदर से सारे कॉलम्स निकालते हैं, कितने कॉलम्स हैं करंट टेबल में, फिर उस कॉलम में से कौन सा कॉलम वल्नरेबल है, जो कॉलम वल्नरेबल होता है फिर हम उसी कॉलम में प्रिंट कराते हैं द नेम ऑफ द डेटाबेस। वंस वी नो द नेम ऑफ द डेटाबेस, द नेक्स्ट स्टेप इज़ बेसिकली कि हम उस डेटाबेस के सारे टेबल्स का नाम प्रिंट कराएं। फिर जब सारे टेबल्स का नाम प्रिंट करा देते हैं तो फिर हम बेसिकली उसके सारे कॉलम्स का नाम प्रिंट कराते हैं जो भी आपको टेबल चाहिए। फिर आपको सारे कॉलम के नाम मिल जाते हैं एंड अल्टीमेटली देन यू कैन गो फॉरवर्ड एंड गेट द डेटा आउट ऑफ इट, राइट। सो दिस इज़ बेसिकली अ लॉगिन बेस्ड एसक्यूएल इंजेक्शन। जो यूनियन बेस्ड एसक्यूएल इंजेक्शन होता है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, जैसे मोस्ट प्रोबेबली साइट में हो भी सकता है। लेट्स बेसिकली गो इनटू सम प्रोडक्ट्स और समथिंग, जैसे यहाँ पे कंटेंट इज इक्वल टू पर्सनल लोन .html आ रहा है इस तरीके से। सो अगर किसी वेबसाइट में हमें IDs ऐसे देखने को मिल जाती है .php एंड वहाँ पे हमें IDs मिलती है, तो वी कैन गो ओवर एंड डू दैट पर्टिकुलर थिंग ओवर हियर एज वेल। अगर आप यहाँ पे देखो index.jsp है, JSP बहुत पुराना टेक्नोलॉजी है, आई गेस 1996-97 में जावा सर्वर पेजेस क्रिएट किए जाते थे फॉर क्रिएटिंग द वेबसाइट्स एंड दिस इज़ ऑल्सो अ JSP वेबसाइट एंड अल्टीमेटली ये बहुत ज़्यादा हैवी हुआ करते थे और इन्हीं का एक मैं बोल सकता हूँ कि सक्सेसर है जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज, राइट। मतलब
JSP को हटाने के लिए, रिप्लेस करने के लिए जावास्क्रिप्ट लैंग्वेजेस बनाई गई थी. सो अल्टीमेटली JSP भी PHP की तरह काम करती है और यहाँ पर भी हम वही सेम चीज़ कर सकते हैं. जैसे कंटेंट इज इक्वल टू personal.htm आ रहा है, तो यहाँ मैं ट्राई कर सकता हूँ कंटेंट इज इक्वल टू 1, यहाँ पे टाइप करके देखो क्या डेटा आ रहा है. तो 1 इस तरीके से आ रहा है और यहाँ बोल रहा है फेल ड्यू टू द रिक्वेस्टेड रिसोर्स, क्योंकि 1 एग्जिस्ट नहीं करता. फिर मैं यहाँ पर एक एपोस्ट्रोफी देकर देखता हूँ कि क्या हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है. तो दैट इज़ व्हाट आई कैन एक्चुअली डू. या फिर मैं बेसिकली यहाँ पर person.html के अंदर आगे एपोस्ट्रोफी लगा करके देख सकता हूँ. सो ये सीधा बोल रहा है कि दिस इज़ नॉट एग्जिस्टिंग. तो ऐसे करके यू कैन एक्चुअली ट्राई टू गो हेड एंड वी कैन जस्ट हैव कमेंट्स ओवर हियर, बिकॉज JSP के कमेंट्स और JSP की चीज़ें अलग लगती हैं. एंड दिस इज़ अ वेरी ओल्ड वेबसाइट, सो आई गेस PHP वाली चीज़ें यहाँ काम नहीं कर रही है. नो इशूज़. Right. Suppose sometime username and password is not vulnerable, but SQL injection is there in website. Can you explain? देखो यूज़र पासवर्ड वेरिएबल नहीं होता है, मतलब हैकेबल नहीं होता है. जैसे इस वेबसाइट में भी हमने देखा कि इसके अंदर लॉगिन जो था, ये वाला ऑनलाइन बैंकिंग, दिस वाज एक्चुअली वी वर एक्चुअली एबल टू गो इनसाइड. तो इसका लॉगिन वल्नरेबल था, बट बाकी मेरे को लग रहा है वल्नरेबिलिटी इसके अंदर शायद होगी, बट आई हैव टू रिसर्च मोर. द पॉइंट इज दैट व्हाट यू आर सेइंग इज कि लॉगिन कई बार वल्नरेबल नहीं होता, बट द साइट इज स्टिल वल्नरेबल विद SQL इंजेक्शन. दैट इज़ अ यूनियन बेस्ड SQL इंजेक्शन, जो वेबसाइट के ऊपर हो सकता है. सो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, वी कैन फाइंड आउट सर्टेन वेबसाइट्स ओवर हियर. सो लेट्स गो विद इन URL. वी वांट PHP वेबसाइट्स जिसके अंदर कोई ID आती हो. Right, so let's basically have certain websites over here. So we have login on this website. Let's open that. Berkeley Recycling Programs है, काफ़ी पुरानी वेबसाइट है, which we can take for checking out. Right. Again, I do not have permission for these websites, but हाँ, मतलब एक just एक practice के लिए या फिर उसके लिए I wouldn't suggest you कि आप directly करो. राइट, क्योंकि मेरे को पता है किस हद तक मेरे को जा कर के दिखाना है, सो मैं तब तक ही करूँगा. राइट. सो जैसे यहाँ पे बर्कली रिसाइकलिंग मेरे को दिखता है, एंड इनका जैसे यहाँ पर आई हैव दिस पर्टिकुलर थिंग ID इज इक्वल टू 1. सो PHP वेबसाइट, मैंने यहाँ एक एपोस्ट्रोफी लगाया और अल्टीमेटली आप देखोगे कि वेबसाइट में एक एरर आया या फिर वेबसाइट पूरे तरीके से वाइट हो गई. सो आई हैव टू नाउ बैलेंस दिस पर्टिकुलर एरर बाय सिंपली पुटिंग इन द कमेंट्स ओवर हियर. तो यहाँ पे मेरा अगला स्टेप होता है कि मैं कमेंट रखूँ और बेसिकली वेबसाइट को वापस ला पाऊँ जिस स्टेट में वो ऑलरेडी थी. एंड देन अगर ये चीज़ पॉसिबल है, दैट मीन्स कि यू कैन गो हेड विद इंजेक्शंस. जैसे यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं हो रहा है, आई कैन नॉट एक्चुअली गो हेड विद इंजेक्शंस बिकॉज देयर माइट बी अ फायरवॉल विच इज़ एक्चुअली ब्लॉकिंग दिस. राइट, कुछ और लेकर के देखते हैं. लेट्स टेक दिस वन. यहाँ पर मैंने एपोस्ट्रोफी लगाया. राइट, अल्टीमेटली यू कैन सी यहाँ पर हमारे पास एक एरर आ जाता है दैट दिस कैन नॉट वर्क और वी हैव अ एरर इन search.php ओवर हियर, क्योंकि ID के अंदर मैंने 1 दे दिया. और ये एरर क्यों आया, बिकॉज अंदर ही अंदर यहाँ पर बेसिकली कैसे जा रहा होगा, यहाँ पर बेसिकली जो एक्सेस लेवल जा रहा होगा वो कुछ इस तरीके से जा रहा होगा दैट सेलेक्ट एवरीथिंग फ्रॉम दिस पर्टिकुलर टेबल वेयर ID इज इक्वल टू 1 एंड देयर वुड बी टू एपोस्ट्रोफीज. राइट, एक इस साइड में एक इस साइड में हो सकता है सिंगल एपोस्ट्रोफी हो. ID इज इक्वल टू सिंगल एपोस्ट्रोफी $ID सिंगल एपोस्ट्रोफी. बट मैंने यहाँ पे एक और एपोस्ट्रोफी दे दिया, तो एक तरफ 2 एपोस्ट्रोफी हो गए, जिसकी वजह से हमारे पास यहाँ पर एरर आ गया. इस एरर को सॉल्व करने के लिए आई हैव टू जस्ट पुट सम कमेंट्स ओवर हियर. जैसे मैंने यहाँ कमेंट्स लगाए एंड दिस पर्टिकुलर थिंग हैज़ बीन सॉल्व बैक टू द प्रीवियस डेटा. इसको मैं थोड़ा सा ऐसे मैग्नीफाई कर देता हूँ सो दैट यू कैन एक्चुअली सी इट इन अ बेटर मैनर. Right, so we have this particular thing over here. Now what I can actually go or do is I can actually just check out certain, let's say, columns over here. Right, so I can use order by command. Right, अब order by से क्या होता है, order by से actually I can go ahead and find out number of columns in this particular table. मतलब currently जो वेबसाइट पे टेबल जहाँ से डेटा आ रहा है उस टेबल में कितने कॉलम्स है. मैं ये क्यों निकाल रहा हूँ, क्योंकि मेरे को कॉलम्स नहीं पता होंगे तो मैं वल्नरेबल कॉलम नहीं निकाल पाऊँगा, और अगर वल्नरेबल कॉलम नहीं निकाल पाऊँगा तो मैं आगे का काम नहीं कर पाऊँगा. सो लेट्स टाइप इन ऑर्डर बाय 100 कि जो भी डेटा आ रहा है वो 100 कॉलम से ऑर्डर हो जाए. अब अगर 100 कॉलम एग्जिस्ट ही नहीं करता हुआ इस टेबल में तो एरर आएगा, अगर करता हुआ तो एरर नहीं आएगा. तो हिट एंड ट्रायल करेंगे. 100 किया, 20 करके देखते हैं. 20 पे चल रहा है, 100 पे नहीं चल रहा है. बीच की वैल्यू लेके देखते हैं, इज़ इट वर्किंग ऑन 25, मतलब 50 भी ले सकते हो आप, बट ये 25 पे भी नहीं चल रहा है. सो नाउ इट कुड बी आइदर 22 और 23. तो मैंने 22 किया. 22 करने पे पता लगा चल रहा है. लेट्स ट्राई 23 पे मैंने ट्राई किया, नहीं चल रहा है. सो आई एक्चुअली गॉट टू नो देर आर एक्चुअली 22 कॉलम्स इन दिस पर्टिकुलर वेबसाइट. अब अगर 22 कॉलम हैं तो मैं क्या करूँगा, मैं सिंपली यहाँ पे यूनियन सेलेक्ट स्टेटमेंट लिखूँगा. राइट, सो यूनियन सेलेक्ट
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 7. यू कैन जस्ट टाइप एनी थिंग. मैं सिर्फ यहाँ पे ये इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि जो भी मैं डेटा यहाँ लिखूँगा वो सारा डेटा मेरे को रिफ्लेक्ट होगा, राइट. अल्टीमेटली होता क्या है कि ये सारा का सारा डेटा एक्चुअली एक हमारे इसमें आ जाता है, राइट. बेसिकली जो भी टेबल है जहाँ से अभी डेटा आ रहा है उसके अंदर ये सारे के सारे जो भी डेटा मैं दे रहा हूँ वो कंबाइन हो जाएगा उस डेटा के साथ, मतलब उसी टेबल का एक पार्ट बन जाएगा. और जैसे ये सारा डेटा एक टेबल से डिस्प्ले हो रहा है तो हमारे नंबर्स भी डिस्प्ले होंगे, तो मेरे को ये पता चल जाएगा कि कौन सा कॉलम एक्चुअली में वल्नरेबल है. तो जैसे ही मैंने ये डाला, ओके दिस इज बेसिकली शोइंग एरर. 23 थे क्या या 22 थे? 23 पे भी हमें एरर आ रहा है. 23 गिने थे हम ना, 22 गिने थे. लेट मी डू इट वंस अगेन. ग्रुप बाय कर ऑर्डर बाय करते हैं. 23 गिने थे, 22 गिने थे. तो 22 थे तो 22 पे ही चल जाना चाहिए. लेट्स सी इफ़ वी हैव डन एनीथिंग रॉन्ग. तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22. सो वी आर गिविंग 22 बट यहाँ पे स्टिल हमारे पास एक एरर आ रहा है. और एरर क्या आ रहा है कि नल गिवन इन समथिंग समथिंग. तो हो सकता है कि यहाँ पे दिक्कत क्या हो रही हो कि कुछ डेटा जो है वो दूसरे फॉर्मेट में है और हम जो है किसी और फॉर्मेट में डेटा दे रहे हैं, बिकॉज हमने तो डायरेक्टली इंटीग्रल नंबर्स दे दिए हैं. अब हो सकता है कि वो डेटा इंटीजर फॉर्मेट में हो ही ना, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, नल दे सकते हैं. तो आई हैव टू गिव नल 22 टाइम्स, ठीक है. मतलब नल इज़ अ नॉर्मल पैरामीटर जिससे हमें बेसिकली पता चल जाएगा कि ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा. तो इसको 22 टाइम्स दे देते हैं. लेट्स जस्ट गिव ओवर हियर. सो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22. So we have all the nulls over here. लास्ट वाला को हम हटाते हैं and let's see. ये अभी भी काम नहीं कर रहा है. सो देर माइट बी सम अदर थिंग दैट वी हैव टू मेक श्योर, क्योंकि देर माइट बी सम अदर थिंग्स दैट माइट बी गोइंग ऑन ओवर हियर. तो बीच में कुछ छोटी सी प्रोटेक्शन है विच वी हैव टू लुक फॉरवर्ड इनटू. बट हाँ, थोड़ी रिसर्च करेंगे तो इस वेबसाइट के अंदर इंजेक्शन ज़रूर मिल जाएगा, बिकॉज वी नो इंजेक्शन हो ज़रूर रहे हैं इसके अंदर, राइट. अल्टीमेटली अगर आपको ऐसे नहीं मिलता है या फिर अगर आप आगे नहीं कर पाते हो तो यू कैन एक्चुअली गो हेड विद द टूल कॉल्ड एज SQL मैप. और उस SQL मैप टूल को आप डायरेक्टली यूज़ कर सकते हो अपने with your particular system, or let's say with your particular Kali Linux या Windows के साथ थ्रू WSL और समथिंग आप यूज़ कर सकते हो. एंड इट्स अ पाइथन टूल, तो काफ़ी आराम से वो काम भी कर जाता है. एंड इट वुड एक्चुअली लेट यू नो अबाउट ऑल द थिंग्स दैट आर देयर इन अ वेबसाइट जहाँ पे हो सकता है. बर्ब सूट का इस्तेमाल नॉर्मली करने के लिए ब्लाइंड SQL इंजेक्शंस के लिए होता है. बट जो इंजेक्शंस ब्लाइंड नहीं है, मतलब बिना बर्ब सूट के जो हमें दिख रहे हैं, जैसे ये वाला है जिसको मुझे पता है कि मैं आगे लेकर जा सकता हूँ, तो बेटर ऑप्शन इस कि आप इसको SQL मैप में जाकर के वेरिएबल दे दो और वो ऑटोमेटिकली इसके अंदर बेसिकली SQL इंजेक्शन है या नहीं है, किस तरीके से है, वो ढूंढ करके आपको बता देगा, राइट. सो दैट इज़ द बेसिक थिंग ओवर हियर. देन वी कैन जस्ट बेसिकली ट्राई going into any other thing. मतलब ये पूरा अगर मेरे को करके दिखाना हो तो आई कैन एक्चुअली डू इट ऑन एक्यूनेटिक्स पे तो बहुत आसानी से मैं दिखा सकता हूँ इसको, बिकॉज इट्स ऑलरेडी अ वल्नरेबल वेबसाइट, राइट. बट लाइव में मैं आपको प्रॉब्लम से बता रहा था कि कैसे कैसे हो सकती है. जैसे अगर मैं यहाँ पर दिखाऊँ तो यहाँ पर भी आप देखो कुछ प्रोडक्ट्स हैं और प्रोडक्ट पेज से बेसिकली यहाँ डेटा आ रहा है. एंड इफ़ आई हैव टू गो फॉरवर्ड आई कैन एक्चुअली जस्ट डू इट ओवर हियर लाइक दिस, राइट. मतलब मैं cat1 लिखूँगा, आगे मैंने अपोस्ट्रोफी दे दिया एंड अल्टीमेटली यहाँ पर मेरे को एरर आ गया. एरर को सॉल्व करने के लिए मैंने कमेंट्स दे दिए. कमेंट्स देने के बाद एरर सॉल्व नहीं हुआ. कमेंट को थोड़ा बदल के देखते हैं, राइट. यहाँ पर अभी भी सॉल्व नहीं हुआ. सो वी कैन एक्चुअली ट्राई टू रिमूव द अपोस्ट्रोफी एंड सी इफ ओनली कमेंट्स वर्क. ओनली कमेंट्स काम कर रहे हैं. नाउ वी कैन गो अहेड एंड वी कैन बेसिकली ट्राई टू फाइंड द कॉलम. सो अल्टीमेटली अगेन आपने ऑर्डर बाय का इस्तेमाल किया यहाँ पर, राइट. सो ऑर्डर बाय लेट्स से 20 करके देखते हैं. 20 का ऑर्डर किया, यहाँ पे सीधा बोल दिया अननोन कॉलम बिकॉज 20 डज नॉट एग्जिस्ट. फिर उसके बाद मैंने यहाँ 10 दिया. 10 इज़ वर्किंग, राइट. आराम से डेटा आ रहा है. फिर मैंने 11 दिया. 11 देने पे भी यहाँ पर आप देखोगे डेटा आ रहा है. 12 दिया, राइट. ऑन 12 द डेटा इज़ नॉट वर्किंग. सो अल्टीमेटली यहाँ पे 11 कॉलम हो सकते हैं. सो फिर मैंने यहाँ पर यूनियन सेलेक्ट लगाया, वही सेम चीज़ यूनियन सेलेक्ट, एंड आई विल बी यूजिंग द सेम थिंग ओवर हियर. तो ऐसे ही लगाते ही मेरे को पता चला कि 11 कॉलम्स तो मैंने दे दिए. बट नाउ इफ़ आई शो यू कि इससे फ़र्क क्या पड़ा, इफ़ आई गो बैक इन द वेबसाइट यू कैन एक्चुअली सी कि ये वेबसाइट, ये हर पर्टिकुलर चीज़ का जो इधर एक ये आ रहा था हमारे पास, वी वर एक्चुअली एबल टू सी दिस
what we can actually say, this particular name of the product, right? ये जो है हमारे पास ये 7th कॉलम से आ रहा है, और जो इसका डिस्क्रिप्शन है वो 2nd कॉलम से आ रहा है, और बेसिकली जो इसका पेंटर का ऑथर है या फिर जो पेंट जिसने किया है, जो आर्टिस्ट है, वो 9th कॉलम से आ रहा है, राइट? और फोटो 8th कॉलम से आ रही है, विच आई कैन जस्ट कॉपी द फोटो, लाइक कॉपी द इमेज लिंक एंड एक्चुअली सी कि यहाँ साइड में लिखा भी आ रहा है नीचे जब मैं होवर करता हूँ कि दिस इज़ एक्चुअली द 8th कॉलम ओवर हियर, एंड दैट इज़ एक्चुअली हाउ इट पर्टिकुलरली वर्क्स. अब 2nd कॉलम की जगह मेरे को सब कुछ इनपुट कराना है, आउटपुट कराना है एक्चुअली. तो अगर डेटाबेस का नाम मैं आउटपुट कराना चाहता हूँ तो मैं सिंपली 2nd कॉलम की जगह यहाँ पे डेटाबेस नेम लिख सकता हूँ या डेटाबेस फंक्शन लिख सकता हूँ, एंड एक्चुअली मेरे को यहाँ पर 2nd कॉलम के अंदर डेटाबेस का नाम मिल जाएगा. जैसे ही मेरे को डेटाबेस का नाम मिल जाएगा तो अल्टीमेटली आई कैन गो अहेड एंड अल्टीमेटली आई कैन जस्ट ट्राई टू find how many tables are there in this database. तो ये particularly मैं कैसे कर सकता हूँ, I can just group my all the tables over here. ठीक है, मैं एक ग्रुप बना सकता हूँ अपने सारे टेबल नेम्स का, राइट? एंड अल्टीमेटली ये डेटा कहाँ से आएगा? ये डेटा आएगा इन्फॉर्मेशन स्कीमा के अंदर से. इन्फॉर्मेशन स्कीमा एक ऐसा डेटाबेस है जो आपको हर एक एसक्यूएल के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट मिलेगा ही मिलेगा, और उस इन्फॉर्मेशन स्कीमा के अंदर सारी कन्फिगरेशंस और हिस्ट्री स्टोर्ड होती है आपके पूरे डेटाबेस की. तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा? फ्रॉम इन्फॉर्मेशन स्कीमा डॉट टेबल्स, राइट? बेसिकली फ्रॉम इन्फॉर्मेशन स्कीमा डेटाबेस का नाम है. इस डेटाबेस के अंदर एक टेबल्स नाम का टेबल है जिसके अंदर सारे टेबल के नाम स्टोर्ड है हर डेटाबेस के. ये बात ध्यान से समझना. इन्फॉर्मेशन स्कीमा एक ऐसा डेटाबेस है जिसके अंदर सारी कॉन्फ़िगरेशन स्टोर्ड रहती है. तो इन्फॉर्मेशन स्कीमा के अंदर एक टेबल्स नाम का टेबल है, और उस टेबल के अंदर सारे के सारे डेटाबेस के सारे टेबल्स के नाम ऑलरेडी स्टोर्ड है, राइट? सो इन्फॉर्मेशन स्कीमा के अंदर से मैंने टेबल्स को कॉल किया और मैंने उसको बताया जहाँ पर डेटाबेस का नाम AccuArt हो. AccuArt इज़ एक्चुअली द नेम ऑफ माई डेटाबेस, राइट? जो मैंने अभी भी देखा. तो जहाँ पे मेरे डेटाबेस का नाम AccuArt हो, उस डेटाबेस के अंदर के सारे टेबल्स मेरे को ला के दे दो, और उसको मैं ग्रुप कर रहा हूँ. ग्रुप कॉन्कैट कर लेते हैं, राइट? ग्रुप कॉन्कैट इज द मेन फंक्शन, राइट? सो मैंने ग्रुप कॉन्कैट कर लिया. सारे के सारे टेबल नेम, जितने भी टेबल नेम है, राइट? ऑल द टेबल नेम फ्रॉम दिस पर्टिकुलर टेबल कमिंग फ्रॉम इन्फॉर्मेशन स्कीमा, इस सारे के सारे टेबल्स AccuArt डेटाबेस के अब डिस्प्ले हो जाएंगे मेरे को, राइट? इंटर किया, राइट? यहाँ पे हमारे क्वेरी ने काम किया, क्वेरी इज़ वर्किंग, क्वेरी का काम ख़त्म हुआ. और अगर मैं नीचे आता हूँ तो यहाँ पे नंबर 2 की जगह मेरे को सारे के सारे टेबल्स का नाम मिल चुका है. सारे टेबल्स का नाम मिल गया. सबसे बढ़िया टेबल कौन सा है इसके अंदर? यूज़र्स टेबल, जिसके अंदर कुछ चीज़ें गड़बड़ हो सकती हैं, या फिर शायद एडमिन अकाउंट का आईडी पासवर्ड हो सकता है, राइट? सो अल्टीमेटली यहाँ पर जो यूज़र्स टेबल है, अब मैंने यूज़र्स टेबल पकड़ लिया. अब मुझे इस यूज़र्स टेबल के अंदर से कॉलम चाहिए, तो मैंने यहाँ पर कर दिया कॉलम नेम, राइट? ये कॉलम नेम कहाँ से आएंगे? जैसे मैंने बताया इन्फॉर्मेशन स्कीमा के अंदर एक टेबल्स नाम का टेबल होता है, वैसे ही कॉलम्स नाम का भी टेबल होता है, राइट? और ये कॉलम्स नाम के टेबल के अंदर दुनिया भर के सारे टेबल्स के कॉलम्स का नाम स्टोर्ड रहता है. डेटा स्टोर्ड नहीं रहता, सिर्फ कॉलम का नाम स्टोर्ड रहता है, राइट? टेबल नेम मेरे को पता है, राइट? वो मैं यहाँ पर लिख लूँगा यूज़र्स, ठीक है? अब अगर मैं एंटर दबाऊंगा तो मेरे को क्या मिलेगा? सारे के सारे कॉलम का नाम, यूनेम, पासवर्ड, सीसी, एड्रेस, और ये सारे कॉलम्स का नाम मेरे को मिल चुका है. इसके अंदर से मेरे को क्या चाहिए? यूज़र नेम और पासवर्ड चाहिए, राइट? जो कि अल्टीमेटली टेस्ट था, राइट? मैंने इसको किया कॉपी, और कॉपी करने के बाद लेट्स से मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया, क्योंकि अब तो मेरे को यूज़र नेम और पासवर्ड ही चाहिए. इनको सेपरेट भी कर लेते हैं. लेट्स जस्ट पुट सम कोलन ओवर हियर, डबल कोलन प्रिंट हो जाएंगे सो दैट मेरे को अच्छे से दिखे. और ये डेटा तो हमें पता ही है टेबल का नाम, तो आई कैन जस्ट रिमूव एवरीथिंग आउट ओवर हियर, और ये डेटा यूज़र्स के अंदर से डायरेक्टली आ जाएगा. सो दिस इज़ बेसिकली माई क्वेरी. और इस क्वेरी के बाद अगर मैं नीचे आता हूँ तो टेस्ट मेरे को आईडी पासवर्ड देखने को मिल जाता है. सो दिस इज़ एक्चुअली हाउ आई कैन एक्चुअली वर्क ऑन यूनियन बेस्ड एसक्यूएल इंजेक्शन, और मैं डेटाबेस के अंदर से ही उसका डेटाबेस निकाल करके आई कैन एक्चुअली ट्राई टू लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स और गेट अ लॉट ऑफ थिंग्स आउट ऑफ माई एसक्यूएल इंजेक्शंस, थ्रू विच आई ऑल्सो जस्ट हैक्ड इनटू माई दिल्ली यूनिवर्सिटी पार्ट एज वेल. उसके अलावा और भी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जहाँ पर ये चीज़ें लग जाती हैं. देयर आर मेनी यूनिवर्सिटी
यूनिवर्सिटीज़ जिनके साथ हम काम कर रहे हैं, राइट, अलग अलग वेस्ट बंगाल की, दिल्ली बेस्ड यूनिवर्सिटीज़ और उनकी वेबसाइट्स, कॉलेजेस की जिनके साथ हमने काम किया, सिक्योर कोडिंग उनको कराई, सर्विसेज दी, तो उनकी वेबसाइट्स एक्चुअली एसक्यूएल इंजेक्शन से वल्नरेबल होती है, राइट। अब इसको आप कैसे ठीक कर सकते हो? बेसिकली ये जो इनपुट आ रहा है ना, ये एक्चुअली यूज़र इनपुट है, और इस यूज़र इनपुट के अंदर मैंने एसक्यूएल के कुछ कमांड्स दिए हैं, तो मेरे ही इनपुट की वजह से, एक मेलिशियस यूज़र के मेलिशियस इनपुट की वजह से ये काम हो रहा है, राइट। नाउ द पॉइंट इज़ कि अगर आप बैकएंड में इनपुट सैनिटाइजेशन कर दो कि ये काम एक्चुअली हो ही ना, राइट, जब भी कोई ऐसा इनपुट दे तो उस इनपुट को पहले ही आप मना कर दो कि ये इनपुट में क्या आया है, राइट। देयर यू कैन एक्चुअली अप्लाई सम इफ एल्स कंडीशंस, और अगर आपने इफ एल्स कंडीशंस लगाई और ऐसी चीज़ें पहले ही आपने मना कर दी इफ एल्स के साथ, तो अल्टीमेटली फिर डेटा वहीं रुक जाएगा और एसक्यूएल इंजेक्शंस प्रिवेंट हो जाएंगी। दिस इज़ हाउ एक्चुअली दीज थिंग्स आर वर्किंग, right? Sumit have given some things: sublister, target, okay, sublister, cat domains, httpx, cat live. So Amit have posted something like this over here, जहाँ पे उन्होंने हमें एक कमांड दिया है। सबलिस्टर देखो अमित, अगर आप सबलिस्टर यूज़ कर रहे हो, सबलिस्टर से तो सब डोमेन्स निकलते हैं। यहाँ पर सब डोमेन्स का कोई ऐसा यूज़ है नहीं एसक्यूएल इंजेक्शन करने के लिए। हाँ, आप एक बार सब डोमेन सारे निकाल लो, फिर देखो कि इसके अंदर अगर एसक्यूएल इंजेक्शन हो सकता है, नहीं तो आप कर सकते हो, राइट। उसके बाद आपने सेकेंड कमांड में कैट किया है, बेसिकली यू आर जस्ट यूजिंग HTTPX ऑन द डोमेन लिस्ट। जो सारी सब डोमेन्स आपके पास सब लिस्टर से आए, वो सारे के सारे सब डोमेन अब आप HTTPX में दे रहे हो, राइट। एंड देन बेसिकली व्हाट यू आर डूइंग, यू आर बेसिकली परफॉर्मिंग सम वे बैक URLs ऑन दैट पर्टिकुलर डोमेन्स जो भी आपको निकल के आए हैं, राइट। और फिर आप उसके बाद उसके ऊपर एसक्यूएल इंजेक्शन के जितने भी URLs हैं उनको आप अलग कर रहे हो, और फिफ्थ स्टेप में आप उन URLs के ऊपर डायरेक्टली एसक्यूएल रन कर रहे हो, राइट, और उनके डेटाबेसेस को निकाल रहे हो। Although this thing could work, but ये बिना समझे हुए डायरेक्टली चलाना is not a good option, because there are 6-7 tools working inside only one script that you have given. So इन सारे tools को अलग अलग चलाओ और डेटा को समझो, तब ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अगर आप ये डायरेक्टली चला दोगे तो वर्बोसिटी नहीं रहेगी, और बहुत आप इफ़ यू आर अ बिगनर, राइट, इट वुड बी वेरी फ्रस्ट्रेटिंग फॉर यू कि क्या आउटपुट आ रहा है, कैसे आ रहा है। तो एक एक टूल को अलग अलग चलाओ। ऑल्सो सजेशन की सबलिस्टर की जगह सब फाइंडर का यूज़ करो, सबलिस्टर सब डोमेन्स दे ही नहीं पाता, बहुत ज़्यादा स्लो टूल है, ठीक है। तो एडवांस नहीं है कुछ इसमें, इट्स अ प्रिटी सिंपल थिंग, और एनमरेशन या फिर वेब बेस्ड इंफॉर्मेशन गैदरिंग की ही बारे में आपने चीज़ें बताई हैं, नॉट मच, राइट। इट्स इंपॉर्टेंट टू लर्न एसक्यूएल इंजेक्शन, येस इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न एसक्यूएल लैंग्वेज फॉर एसक्यूएल इंजेक्शंस एंड PHP एज वेल, राइट। इतनी समझो, इतनी ही लैंग्वेज प्रैक्टिस करो जितनी उसका एक कोड पढ़ के समझ में आ जाए। ऐसा नहीं कि भाई लगे ही हुए हैं उसको समझने में, या फिर उसके अंदर डेवलपमेंट कर दी, पूरी वेबसाइट बना दी, नहीं, सिर्फ एक लिखा हुआ कोड समझ में आ रहा है, बर्ब सूट के अंदर लिखी हुई रिक्वेस्ट जो इधर उधर जा रही है वो समझ में आ रही है, दैट्स इट। उससे ज़्यादा लैंग्वेज सीखने की ज़रूरत नहीं है, बाकी धीरे धीरे आपको समझ में आती रहेंगी। सो सिर्फ इतना समझो, जितना जितना नॉर्मली आपको समझ में आता है, सिर्फ उतना उतना समझ के उतना सीखते रहो, राइट। सो ये बेसिक चीज़ है। Then you, for web-based injections, or let's say for web-based vulnerabilities, you need to actually learn JavaScript. जितनी ज़्यादा अच्छे से JavaScript आएगी, उतने अच्छे से चीज़ों को समझ पाओगे। So that is also one more thing over here. ठीक है, तो ये है एसक्यूएल इंजेक्शन का एक पूरा डेमो मैंने दे दिया है, कैसे काम करता है। लॉगिन बेस्ड एसक्यूएल इंजेक्शन मैंने बताया, पूरा लॉजिक उसका बताया, कैसे ट्रू हो जाती है वैल्यू। देन आई ऑल्सो टोल्ड यू अबाउट द सिक्योनिटिक्स एक्यूआर्ट के ऊपर मैंने ये पूरा करके भी दिखाया, राइट। एंड आई नो आई डिडंट गिव अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन अबाउट इसके क्या क्या है, बट इसकी इन्फॉर्मेशन, बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन देने के लिए एक अलग से 2 घंटे का सेशन करना पड़ेगा। तो ऑलरेडी हमने ये सेशन बूट कैंप्स के अंदर कर रखे हैं, तो यू कैन कम इनटू द बूट कैंप्स एंड सी ऑल द सेशंस, क्योंकि आपको प्रीवियस रिकॉर्डिंग्स तो मिल ही रही हैं। सो यू कैन एक्चुअली चेक आउट ऑल दोज थिंग्स, राइट। सो दैट इज़ ऑल फॉर फ्रॉम माई साइड। कोई डाउट है किसी को तो चैट्स में पूछ लो, राइट। आई एम शेयरिंग यू सम इन्फॉर्मेशन टिल द टाइम अबाउट द बूट कैंप एज वेल, राइट। सो कोई अगर डाउट या कुछ भी अगर आपको है, राइट, इफ़ यू वांट टू आस्क एनीथिंग ओवर हियर, यू कैन एक्चुअली आस्क, देयर इज़ नो इशू इन दैट।
Okay, so this is a poster for the boot camp for the month of November that we are having, right? जिनको नहीं पता, boot camp हम लोग हर second month में करते हैं, right? Last boot camp happened in September. This time the boot camp is happening in November. So 16 to 20th November में boot camp होगा, 5 दिन का boot camp रहेगा, जिसके अंदर हम लोग 5 नए topics लेने वाले हैं 2-2 घंटे के, right? 15th तक free webinars चलेंगे, 16 to 20 we have boot camp, right? And ultimately the boot camp goes for ₹499. It's totally upon you कि आप 500 रुपये को वैसे भी 5 दिन में अगर मैं बोलूँ खर्च करने को तो उससे ज़्यादा ही खर्च कर देते हो, दिवाली का टाइम है तो थोड़े ज़्यादा खर्च हो जाते हैं। इस बार शायद अपने पटाखे 500 रुपये के कम ला के 500 रुपये का कुछ ऐसा इन्वेस्ट कर सकते हो जहाँ पे शायद कुछ सीख पाओ, राइट? एंड अल्टीमेटली इफ़ यू हैव अ ग्रुप ऑफ 3 पीपल तो आपको एक सीट फ्री मिलेगी for every 2 seats you buy, right? The link is pretty simple. You can go on to hackersvilla.xyz/bootcamp and you can actually get the registration done over there. Let me also tell you about the content for all the 5 days. Day 1 on 16th November हम लोग फ़ोन हैकिंग ऑन एंड्रॉयड OS के बारे में बात करने वाले हैं. What is this and how it works, right? And ultimately किस तरीके से persistence कनेक्शन लिए जाते हैं और फ़ोन हैकिंग कैसे करी जाती है उसके बारे में प्रैक्टिकली बात करेंगे. Day 2 we would be talking about social media hacking, how AI tools could be used for social media hacking and how सोशल मीडिया हैकिंग इज़ नाउ बिकमिंग मोर वल्नरेबल एंड किस तरीके से AI टूल्स हैकर्स को और स्कैमर्स को यूज़ कर यूज़फुल बना देते हैं, लाइक हाउ दीज AI टूल्स आर यूज़फुल फॉर दीज थिंग्स और कैसे आप ज़्यादा बेटर तरीके से अपने अकाउंट्स को वापस जल्दी से रिकवर कर सकते हैं. थर्ड इज़ एक्चुअली OTP एंड 2-factor ऑथेंटिकेशन बाईपास, कि हाउ कैन यू एक्चुअली जस्ट गो ahead and use two-factor authentication and you can bypass it and you can actually hack into the accounts and how you can do web-based attacks regarding this. तो इसके बारे में हम लोग बात करेंगे. Day 4 स्पेशली यहाँ पे एक बिल्कुल अलग चीज़ रखी हुई है which is called as game hacking, where we would be talking about reverse engineering. किस तरीके से we can reverse engineer like a pro and we can actually hack into multiple games, right? Online, offline दोनों की बात करूँगा. Day 5 we would be having Wi-Fi attacks and IoT attacks, right? And understanding all the wireless protocols that are there, including 5G attacks जो आजकल चल रहे हैं मार्केट में, तो उनके बारे में हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं. सो रजिस्टर करने के लिए यू जस्ट नीड टू गो ओवर टू द वेबसाइट, और लेट्स से आप hackersvilla.xyz खोलते हो एंड अल्टीमेटली you just have to click on the bootcamp page and you will be redirected to the payment gateway for this particular bootcamp. तो बहुत सिंपल है, ज़्यादा कुछ है नहीं, right? Let me just copy the link and give it to you so that you can actually just go forward. So this is the link, and if you click on it, ultimately it's connected to InstaMojo. You can just directly fill your details, next, and pay your amount through UPI, credit card, debit card, and any kind of thing you have, right? So that is all from my side. Bootcamp पे register करना हो तो the seats are only 14 seats are left, right? और बहुत limited रहता है bootcamp, right? We do not actually take a lot of people in the bootcamp क्योंकि bootcamp के अंदर we do not want more than 20 people and we want serious people over here. So ultimately अगर सीखना चाहते हो या फिर देखना चाहते हो साइबर सिक्योरिटी इंडस्ट्री काम कैसे करती है, then this bootcamp is for you, right? रजिस्टर करना, आना, एंड यू विल बी एबल टू लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स. सो ओके, दैट इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड. कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो, कुछ भी हो, यू हैव द व्हाट्सएप ग्रुप, राइट? कहीं पे भी ड्रॉप कर देना अपना क्वेश्चन. कोई अगर कुछ भी हो, राइट? इफ़ यू हैव एनी थिंग, एनी पर्टिकुलर इंक्वायरी अबाउट द कोर्सेज, ट्रेनिंग्स और एनी अदर 1-to-1 सेशन यू वांट टू हैव विद मी, जस्ट ड्रॉप योर मैसेज वंस एंड वी विल बी एबल टू चेक इट, राइट? अगर पाकिस्तान से पेमेंट्स कैसे ट्रांसफ़र करे, जस्ट कॉन्टैक्ट आर ग्रुप एडमिन्स वंस, एक बार उनको कॉन्टैक्ट करना, दे लेट यू नो अबाउट ऑल द थिंग्स, ठीक है? ओके, सो दैट इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड. नंबर द ग्रुप एडमिन्स आर देयर. यू आर इनटू अ व्हाट्सएप ग्रुप और नॉट? If you're not on the WhatsApp group, I am giving you this particular number. इस नंबर पे भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो on WhatsApp, right? Okay then, thanks a lot guys for joining in, right? Making it interactive. Thanks a lot everyone. Let's meet tomorrow at 6 PM with more injections and more vulnerabilities coming in. कुछ नया पढ़ेंगे, कुछ नया सीखेंगे कल, right? Yeah, that is all from my side.